All right, good noon, guys. So this is Dadar batch 2 and Andheri batch 4, right? All right. So most of the students have joined in. I think some are still remaining. So we'll give it a couple of more minutes for others to join in. All right. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइक एज यू रिमेम्बर मैंने एक क्विक सब टॉपिक्स का कंटेंट भी आपको बताया था that these are all the things that we have done and discussed. इसके बेसिस पर आप लोगों ने बुकलेट के क्वेश्चंस भी ट्राई करे हैं. Now based on this, couple of important points which I would want to start. First point being regarding the homework that was given to you. So जो last homework आपको मिला था उसमें FB और FBS के क्वेश्चंस का तो मैंने आपके साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन शेयर कर दिया है. जो गेट इक्विप टू मेंस एंड गेट इक्विप टू एडवांस्ड वाला सेक्शन है उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन प्लस जो एक मोल कंसेप्ट का सेकंड असाइनमेंट भेजा गया था आपको उसका भी वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. राइट. सो सेकंड असाइनमेंट जो है दैट इज pretty good in terms of its level of difficulty, so definitely try that and अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो then you can refer to the video explanations, and in case that doesn't work out so you can definitely like specific parts लेकर मुझसे डाउट भी डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पर. ठीक है. Now second point was yes regarding the WhatsApp के doubt discussion. So my request to you guys would be when you are sending me your doubts, राइट. आप क्वेश्चन के साथ साथ आपने जो सोल्यूशन करा है या आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें आप कहाँ अटक गए हो उसका भी स्क्रीनशॉट लिखकर बताओ, भेजो, सो दैट आई एम आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच पार्ट यू डिड नॉट गेट स्पेसिफिकली. ठीक है. दैट विल हेल्प यू यू नो काइंड ऑफ सॉल्व द डाउट्स इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर. नाउ थर्डली द थर्ड पॉइंट इज आज का होमवर्क मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा similar to last time on the group itself. So ensure that आप ग्रुप पे रेगुलरली जो पोस्ट हो रही हैं वो देख रहे हो. एंड लास्टली जो टेस्ट के बारे में मैंने आपको बोला था दैट इज स्टिल ऑन द कार्ड्स. However, what is happening is that I'm trying to sync it with the other subject teachers as well. And सबका साथ में ही अगर एक टेस्ट रहेगा तो it will be better for you guys. ठीक है. So it might take some time for me to get that sync. Once it is done you will get to you know you will get adequate time for preparation. You will get intimation in advance. क्या syllabus है, क्या type का test है, कैसे आपको देना है, all those details will be shared to you. So right now just keep working hard, keep working with the questions that are given to you, and based on that develop this problem solving aptitude. ठीक है. Now before I start today's session, like wanted to understand that आप लोगों को difference समझ में आ रहा है in terms of how boards का preparation used to be and how you know we are solving questions, how we are approaching concepts in JEE preparation, right? Anyone would want to highlight some points that how is it different?
if you want to speak, I can unmute you as well. Like, let me know. Just instead of typing a lot, let me just know who wants to speak. All right. So there is Pooja who wants to say something. So I'm just going to unmute Pooja. Ha. Sir, good morning, or rather, good afternoon. Hi. Good afternoon. I'm trying to say that after boards JEE का जो preparation होता है उसके अंदर ज़्यादा time spend करना पड़ता है books के साथ, because एक चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है. You have to put in more efforts to understand the underlying meaning. Now in NCERT you can just mug up everything and you have to write the textbook written answers. But out here you have to understand the foundational concept, what is there beyond, out of the box thinking, and अपने brain को थोड़ा सा train करना पड़ता है ताकि in the end we get better results. And always try to find the shortest method and the easiest method to solve, because time constraints का भी ध्यान रखना पड़ता है. Great, great. So that's a very wholesome explanation towards how we are going to approach this. Like one more thing which I would want to add to it is आपने notice करा होगा जब आप लोग boards का preparation करते हो तो कैसा होता है, आप पिछले 10-15 साल के papers उठा के देख लेते हो तो most of the questions which are there they kind of get repeated. मतलब एटलीस्ट 50 to 60% पेपर तो ऐसा ही होता है कि आपने पिछले 15-20 साल के पेपर्स देख लिए हैं. सो आपका एटलीस्ट 50 to 60% पेपर आपको अच्छे से करना आ ही जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे व्हेन यू विल लुक एट जेईई एडवांस्ड का पेपर्स पास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स के आप पेपर्स निकाल के देख लो, यू विल हार्डली फाइंड क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड. हार्डली, मतलब मुश्किल से कोई एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा तो हो गया होगा. Now what does it tell you? It clearly differentiates between ratta based learning versus problem solving based learning. You need to ensure that you are able to understand how to solve problems, okay, not just what part of it. That is what the big difference is. ये मैंने आपको orientation के time पे भी बताया था that the reason why you have enrolled in PACE as a guidance to you is the fact because you want to learn how to solve problems. क्योंकि कंटेंट वही है. अभी न्यूटन्स के 3 लॉ जो हैं वो सदियों से वही आ रहे हैं, उनको लेकर जो क्वेश्चंस है उनके सोल्यूशन है सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है कंटेंट की. द थिंग दैट यू हैव टू ग्रास्प इज हाउ डू यू डेवलप दैट अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एंड to tell you over and above that, this problem solving approach is something which is a very very valuable skill. It is something that is a very sought after skill. Matlab, as an example, if you like kind of connected to IITs and NITs and BITS and उनके जो placements होते हैं, you will notice that वहाँ पर जो companies आती हैं बच्चों के लिए placements के लिए, they are companies which are from diverse fields. जरूरी नहीं core engineering की companies हो, फाइनेंस फील्ड से भी आती हैं, मार्केटिंग फील्ड से भी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से कंपनीज कम इन. सो व्हाट डज दैट टेल? दैट टेल्स दैट these companies they are looking for students or candidates who have excellent problem solving skills. उनको अगर कोई random question भी पूछा जाए, like for an example, like guesstimate the number of taxis that are there in Mumbai that run on a day-to-day basis. Like इसके पीछे अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ पढ़ाया जाएगा. They would want to understand how you approach towards this question, how you build towards answering this question. ये guesstimate है, ठीक है, इसका आंसर जो पूछ रहा होगा उसको भी नहीं पता होगा. जो टेस्ट होगा वो ये टेस्ट होगा that how are you structuring your thoughts, how well are you able to articulate that understanding of guesstimate. So this problem solving skill is something which gets honed during these 2 years of preparation. Okay, and believe me, it is not easy. Okay, if you are of this mindset कि अपन तो यार like महाराष्ट्र सीटी का बैकअप है, सरदार पटेल, VJTI, नहीं तो सांगवी, नहीं तो थाडोमल, ये सब कॉलेजेस हैं अपने पास में. So trust me, those backups they become your main option once you start getting into that comfort zone. If you really want to get into these good colleges, मतलब आप जब
फ्यूचर में देखोगे, इनफैक्ट अभी आपके जो बड़े कुछ कजन्स या फ्रेंड्स हो गए उनसे पूछना, कहीं पर वो ऐसे जॉब एप्लीकेशंस या फिर कहीं पे इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो वहां पे ऐसे ना फॉर्म्स में लिखा होता है विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, आईआईटी, एनआईटी, अदर्स, राइट? तो क्लियर अदर्स में आ जाता है सब. तो दैट डिस्टिंक्शन इज समथिंग which makes a lot of difference. Now this is something that you really have to work hard towards. Okay, having said this, see, I am not going to judge anyone on the basis of how they are going to do in physics, chemistry and maths. Matlab, I really do not know that आपका skill किस चीज में है. हो सकता है कल को some of you might end up in very very diverse fields. Some of you might become even a good sports player. Some of you might even become a professional comedian or a singer. आपका टैलेंट अलग अलग फील्ड में हो सकता है, बट जो भी फील्ड है उसमें आपको डेफिनेटली एक सिंसियर, एक डेडिकेटेड एफर्ट डालना पड़ेगा. ठीक है? इवन पीपल विद द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ वॉइस, जो मतलब नेचुरल टैलेंट होते हैं, वो भी दिन के 10-10 घंटे रियाज करते हैं. दे जस्ट डोंट रिलाई ऑन द फैक्ट दैट भगवान ने टैलेंट दे दिया तो अभी चीजें हो रही है. वो रियाज करते हैं. दे टेक ऑल सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस. कुछ ठंडा नहीं खाएंगे, कुछ अजीब सा नहीं खाएंगे. दे विल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, राइट? वैसे ही पढ़ाई जब आप कर रहे हो, आपको लाइक आपके पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दी है बिकॉज यू हैव प्रूवन योरसेल्फ इन योर स्कूल्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स का तो खैर रिजल्ट अभी आया नहीं है, बट आपने पोटेंशियल दिखा, इसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है. तो प्लीज यूज दैट अपॉर्चुनिटी. मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस. ठीक है? सो दिस इज समथिंग व्हिच is very important for you guys to be aware about, and definitely we will have more such discussions, more such interactive sessions. I'll bring in a random question and try to understand your opinion, and then based upon that we might have some gyan session from my side. So that is something which I generally do. All right, now let's continue with our syllabus. That is also something which is important. Now there are some questions that are coming to me like, what time should we have to solve a problem? Like that is a ridiculous question. मतलब जब आपके सामने एग्जाम होगा, एग्जाम में टाइम डिफाइंड होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइंड होंगे, तो आप उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? अभी व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस, जब आप नया नया सीख रहे हो, तो इसमें टाइम का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, स्पेंड दैट टाइम, गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में आप बैठे हो, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया. गिव इट अ हार्ड थॉट, 10-15 minutes, try to think of different approaches and try to come up with the answer. ठीक है? That time which you will spend into one question will not be a waste. It will definitely help you. ठीक है? All right. Now definitely subject concept related doubts भी आपको आते रहेंगे. जैसे some of you are asking कि मुझे purity वाला concept नहीं समझ में आया. I can totally understand प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट आप थोड़ा स्पेसिफिकली जाओगे. मैंने जो एग्जांपल्स आपको क्लास में कराए थे, वो क्लास के एग्जांपल्स में से आप सोल्यूशन देखो, क्या करा था, कैसे करा था, एंड देन उसके बाद उसमें मुझे आप बताओ तो स्पेसिफिकली विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, देन वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट आई हैव बीन आस्किंग यू, दैट लेट मी नो दैट स्पेसिफिक पार्ट, क्योंकि मैं आपके साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहा हूँ. फ्रॉम दिस पॉइंट दैट यू आर एबल टू एटलीस्ट लर्न दोज थिंग्स इन अ मैनर दैट इज एट एज पर योर स्पीड. ओके, सो बी स्पेसिफिक इन योर क्वेरीज एंड इट विल हेल्प यू, राइट? सो like if you let's for example you are asking me, sir, can you give some more sums on purity concept? Definitely I can give you. Ping me on WhatsApp, right? And based on that I will जैसे मैंने असाइनमेंट दिया अभी, वो असाइनमेंट डिफिकल्ट था, बट अगर आपको इजी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बोलो कि सर मुझे थोड़े से इजी क्वेश्चंस बता दो, कहाँ से करने हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. लेट्स now work towards one of the important concepts that this chapter entails. ठीक है? अभी तक जो आप लोगों ने concepts पढ़े थे, they are kind of like a, you can say, building blocks or foundation to what is going to come. Now today we are going to focus on stoichiometry. Stoichiometry talks about analysis of reactions. ठीक है?
मैंने ऐसे रिएक्शन में ऐसे शॉर्ट में RXN लिख देता हूँ, ठीक है, दैट्स समथिंग ऑफ अ हैबिट ऑफ माइंड. सो व्हेन वी आर, सो इस पूरे चैप्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है, that we should be able to analyze reactions. What do I mean by analysis of reactions? कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगेगा, मास में, मोल्स में, वॉल्यूम में. All that is something which is what we are now going to come across. Now understand something, that when we are going to do this discussion, ठीक है, आप आज एक एक करके जो एग्जाम्पल्स अब मैं आपको कराता जाऊंगा, ठीक है, इस क्लास में, अगली क्लास में, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज रीसॉल्व दोज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा तो देयर इज अ चांस कि हाँ आपको मोस्टली समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो आपको व्हाट वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, बट अगेन कैसे करना है वो तभी समझ में आएगा जब आप खुद से वापस से ट्राई करोगे. तो this is something which is actually applicable for maths and physics also. After the lectures, please redo the questions that were done by yourself and see समझ में आया है कि नहीं आया है. ठीक है, all right, so now coming to this stoichiometry wala part, one of the most important things that actually come as a part of this particular topic is balanced chemical equation. ठीक है, now I hope most of you are capable of reading a balanced chemical equation, right? Now what are the key information, what is the key information that comes from a balanced chemical equation? It tells you what are the reactants and what are the products. Then it also gives information about relationship between reactants and products. And this is something which is based on stoichiometric coefficients. ठीक है, जो coefficients यूज होते हैं बैलेंसिंग में, they actually help establish that relationship. ठीक है, then another thing that is important is physical state of reaction species. ठीक है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, it will play an important role. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा when I will take more and more examples. ठीक है, now this is something which is the key information that comes from a balanced chemical equation. Now let's say as an example, अगर मैं आपको बोलूंगा इसमें रीड करने के लिए, say N2 gas plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas, ammonia gas. ठीक है, now how do you propose establishing a relationship between them? So यहाँ पर coefficients read करना, here the coefficient is 1, the coefficient here is 3, and here the coefficient is 2. What it means is, how do you read this is that 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to give you 2 moles of NH3. ठीक है, this is how you'll have to read the reaction. ठीक है, अब ऐसा है कि sometimes it can be in terms of variable as well. So let me put that in terms of variable. Say a general reaction है, reactants are A and B and products are C and D, whereas small a b c d they are the coefficients. ठीक है, ये जो a b c d है small, they are the coefficients, stoichiometric coefficients, right? So now how do I establish the relationship between
ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products. So we established that in form of moles of A consumed upon its coefficient is equal to moles of B consumed upon its coefficient is equal to moles of C produced upon its coefficients is equal to moles of D produced. ठीक है, reactants consume होंगे और products produce होंगे upon its coefficient. And what is this thing equal to? वैभव ने आंसर दिया 1. Is that correct? क्रिश का आंसर सही है. इट्स अ कांस्टेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 हो. ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. मतलब नॉट ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स, also not irrational numbers. So but you understand the gist कि कॉमन यहाँ पर एक केयरलेस मिस्टेक रहती है, कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है that this has to be equal to 1. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये 2 भी हो सकता है ना. मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि 2A moles of A consume 2B moles of B to give 2C moles of C and 2D moles of D. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं. लाइक जैसे यहाँ पर अमोनिया है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग you know 1 mole 2 1 3 and 2, I can very well say 2 moles combined with 6 moles to give 2 moles of ammonia. Why can't I do that? Definitely I can do that. ठीक है, so I hope ये पार्ट आपको समझ में आया है. All right, now अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आ गया है and you are quite comfortable with, then let's do balancing of some of the equations. ठीक है, let me talk about balance the following equations. ठीक है, ट्राई करना. थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो अच्छी बात है. अगर नहीं देखा है तो शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा. ठीक है, हाइड्रोकार्बन है CXHY, जिसको अगर हम बर्न करते हैं तो उससे CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करो इन टर्म्स ऑफ X एंड Y ओनली. ठीक है, एक साथ एक लाइन में पूरा आंसर दो, एक एक करके मत करो. और X और Y की वैल्यू नहीं अज्यूम करनी है. ऋषि क्या कर रहे हो? X अज्यूम कर लिया, X 1 है. भाई तुम आंसर भी ऐसे ही कर दोगे क्या? आगे क्वेश्चन पूछूंगा तुम बोल दोगे आई अज्यूम सर द आंसर इज 0. X और Y के टर्म्स में बैलेंस करके दो. राइट, आरव का आंसर सही है. पूरा पूरा आंसर लिखा है आरव ने. पूरा पूरा लिखो प्लीज. राइट द कंप्लीट इक्वेशन. अन्वेषा का भी आंसर सही है. ठीक है, आरोही का आंसर भी सही है. हर्ष का आंसर भी सही है. राइट, वेदांश ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. वेदांश देखो एक बार. राइट, वंशिका का आंसर भी सही लग रहा है. हाँ ठीक है, वंशिका का आंसर भी सही है. गुड. ठीक है, so quite a few of you have been able to get the answer right. Now those who have not been able to get the answer right, please observe carefully. ठीक है, कैसे इसको करना होता है. आप एलिमेंट बाय एलिमेंट जाओगे और बैलेंसिंग करोगे. ठीक है, आप नोटिस करना. पहले मैं कार्बन पकड़ता हूँ. कार्बन यहाँ पर X है.
तो राइट हैंड साइड पर भी x कार्बन एटम्स होने चाहिए. नाउ फॉर राइट हैंड साइड टू हैव x कार्बन एटम्स, मैं यहाँ पर कोफिशिएंट x डाल दूंगा. ठीक है, सबस्क्रिप्ट मत चेंज करना, ये मत करना, दिस इज इनकरेक्ट. कंपाउंड ही चेंज कर दोगे. डू नॉट प्ले विद सबस्क्रिप्ट, ओनली प्ले विद कोएफिशिएंट्स. अच्छा, तो x बैलेंस हो गया. अब y के ऊपर देखना y कैसा रहेगा. y लेफ्ट हैंड साइड पर तो सॉरी h जो है h बैलेंस करेंगे, h लेफ्ट हैंड साइड पर y है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर भी y होना चाहिए. अब राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन इसी में H2 में है, तो मैं यहाँ पर बस y/2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. Once I do that, I multiply by y/2. I'm able to balance hydrogen as well. Now carbon and hydrogen are balanced, and now it remains oxygen to be balanced. ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, let oxygen का कोफिशिएंट भी a. ठीक है, अब ये a कैसे फिगर आउट करेंगे, यहाँ पे नोटिस करना, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन आ रहा है, a into 2, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है. राइट हैंड साइड पे देखो, CO2 से आ रहा है 2+X, एंड हाइड्रोजन सॉरी H2O से आ रहा है y/2 into 1. तो यहाँ से क्या समझ में आया, दैट A का वैल्यू इज x plus y/4. So that becomes my balanced equation, CxHy plus x plus y/4 O2 is giving xCO2 plus y/2 H2. ठीक है, नाउ जिसको समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा से देख लो. एटम बाय एटम जाना है. ठीक है, मैं एक बार क्विकली यहाँ पे रब कर रहा हूँ. एलिमेंट बाय एलिमेंट जाना है आपको. पहले कार्बन ऑब्जर्व करा, कार्बन के यहाँ पर x एटम्स है तो यहाँ पर x लिख दिया. ठीक है, ये कार्बन का बैलेंसिंग हो गया. फिर हाइड्रोजन के यहाँ पर y एटम्स है तो यहाँ पर भी y होने चाहिए, तो यहाँ पर y/2 लिख दिया. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. अब बचा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का पार्ट. अब क्योंकि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे मल्टीपल एलिमेंट्स में है, तो मैंने एक तरीका आजमाया यहाँ पर, दैट ऑक्सीजन का कोफिशिएंट a लिख दिया LHS पर. ठीक है, a लिख दिया LHS पर, एंड राइट हैंड साइड अब मैं उसका एक्सप्लोर कर रहा हूँ बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स इन बोथ द साइड. लेफ्ट हैंड साइड पर 2a हो गया और राइट हैंड साइड पर 2x plus y/2 हो गया, उससे a का वैल्यू आ गया. ठीक है, ऑल राइट. नाउ एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं ऑन द सेम लाइंस. ट्राई करना. CxHyOZ कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है. इसको भी जब आप बर्न करोगे तो वापस से CO2 और H2O निकलेगा. ठीक है, तो अब मुझे XYZ तीनों के टर्म्स में बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, करके बताओ. ऑलराइट, किसी ने तो कुछ आंसर भेजा है. थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आरोही, आप एक बार दोबारा चेक करो. स्लाइट मिस्टेक. ओके, हेत ने भी वैसी ही मिस्टेक कर दिया. मैंने भी वही मिस्टेक करी है. अरे सब सेम ही मिस्टेक कैसे कर रहे हो. हर्ष ने भी वही मिस्टेक. वाओ, लाइक कोऑर्डिनेट, तुम सब लोग एक ही साथ बैठे हो क्या, सेम मिस्टेक करे जा रहे हो.
फाइनली कृष्ण ने सही आंसर दिया है। अरे चैतन्य, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। मैंने x y z की वैल्यू नहीं पूछी है भाई, और तुमने निकाल कैसे ली? अज्यूमिंग x इक्वल टू 1। तुम तो भाई निकले यार। तुम्हारा भाई कौन था? किसका नाम लिया था मैंने थोड़ी देर पहले? Who was that? Let me just scroll back up. चैतन्य का भाई है ऋषि। भाई तुम दोनों बहुत जोड़ी जमेगी तुम लोगों की। तुम लोग एक बार ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, सारे आंसर्स अज्यूम कर लोगे तुम। ऑल राइट, नाउ लेट मी, अभी एक साथ खूब सारे आंसर्स आ गए हैं, सो आई विल नॉट बी एबल टू चेक ईच वन ऑफ देम, बट लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, वापस से सेम मेथड करेंगे हम लोग अप्लाई। एक्स कार्बन एटम्स इस साइड है, तो एक्स कार्बन एटम्स इस साइड रहेंगे। ठीक है, तो एक कार्बन बैलेंस हो गया। देन वाई हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर है, सो y बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स भी राइट हैंड साइड पे रहेंगे, एज एन y बाय 2 इंटू 2 वाई एटम्स हो गए। तो दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, नोटिस करना कि मैं कार्बन और हाइड्रोजन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इट बिकम्स इजी टू स्टार्ट विद। हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर भी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन पे मैं एंड में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन सब जगह फैला हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑक्सीजन इन द लास्ट। सो नाउ टेकिंग ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का मान लो कोफिशिएंट ए लगाने से बैलेंस हो जाता है, तो कैसा रहेगा? अब ए के लिए कैसे फिगर आउट करेंगे? तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। कैसा बनेगा? यहाँ से Z ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं, यहाँ से 2A ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड पर 2x आ रहा है एज वेल एज y बाय 2 आ रहा है। तो इससे मुझे समझ में आएगा दैट a इज इक्वल टू x प्लस वाई बाय 4 माइनस z बाय 2। तो मेरा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा CxHyOz प्लस x plus y by 4 minus z by 2 into O2. That gives you xCO2 plus y by 2 H2O. ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत वेरिएबल्स के साथ में दौड़ाऊंगा। ठीक है, मतलब this is something which I will bring in a change in your problem solving approach, wherein I will be taking variables and making you solve, क्योंकि they actually get you the कॉन्सेप्चुअल पार्ट राइट। वैल्यूज में तो क्या होता है, कभी कभी कुछ भी तुक्के मार के आप लोग आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे करा। एक्स को बैलेंस करा, कार्बन एटम्स को बैलेंस करा, तो एक्स कार्बन एटम्स इधर आए। ठीक है, मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स कार्बन एटम्स हैं, अब यहाँ पर भी एक्स कार्बन एटम्स कर दिए। वाई हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर भी वाई हाइड्रोजन एटम्स के लिए वाई बाय 2 से डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन को फिगर आउट करना है, तो लेट द ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट हियर बी इक्वल टू ए, एंड उसके बेसिस पर अब ए को हमने निकाला एक्स वाई जेड के टर्म्स में, कैसे? बाय बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऑल राइट, सो विद दिस बैलेंसिंग करना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, स्पेशली अगर वेरिएबल के टर्म्स में होगा तब भी आप बैलेंसिंग सीख गए हो कैसे करना है। नाउ इफ आई may ask one more question, ठीक है, one more balancing, but this time देखना अगर आपसे होता है तो you have HiO3 combining with FeI2 in presence of HCl to give you ferric chloride FeCl3 plus ICl iodine chloride plus H2O। ठीक है, बैलेंस करके बताओ मुझे। राइट मुझे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एक
हाँ वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पर, अब आपको प्रॉपर जैसे नॉर्मल आप बैलेंसिंग करते हो वैसे करके बताओ। ठीक है, उत्सव ने क्वेश्चन पूछा है सर y/2 क्यों लिया? अरे राजा, यहाँ पर ऑक्सीजन के y आइटम, सॉरी हाइड्रोजन के y आइटम्स हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ फीचर कर रहा है? सिर्फ इधर कर रहा है, तो मैं y/2 लूंगा तभी तो मेरे हाइड्रोजन के y आइटम्स आएंगे। यहाँ पर h का सब्सक्रिप्ट देखो ना 2 है, तो कोफिशिएंट y/2 करूंगा तो y/2 इंटू 2 तभी तो y आइटम्स आएंगे। O2 वाले पार्ट में क्या दिक्कत आ गई आरुष? O2 वाले पार्ट में आप देखो ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे O2 कितना आ रहा है? Z यहां से आ रहा है एंड 2A यहां से आ रहा है। ठीक है, देन राइट हैंड साइड से ऑक्सीजन कितना आ रहा है? x इंटू 2 एंड y/2 इंटू 1, बस दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट, कम टू दिस क्वेश्चन। एवरीवन गेट मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन फास्ट। नहीं शौविक, आपका आंसर सही नहीं है। मतलब आप देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं हो रहा है। नहीं सॉरी, इनफैक्ट ऑक्सीजन हो गया शौविक आपके आंसर में। आपके आंसर में H HiO3 plus FeI2 plus HCl gives FeCl3 plus 2ICl plus 3H2O. अरे एक मिनट, आयोडीन बैलेंस नहीं हुआ ना शौविक आपका? देखो आयोडीन में गड़बड़ आ गई। अमया नहीं है सर सही आंसर, वेदांश नहीं, आदित्य सही नहीं है, आयुष का भी सही नहीं है, प्रथम का भी नहीं है, सौम्य का भी नहीं है, नोप नोप, नहीं शिवांश सही नहीं है, सुदीक्षा का भी सही नहीं है, सानिध्य का सही है, सानिध्य ने सही आंसर भेज दिया है। ठीक है, नाउ हिडन ट्रायल से अगर आप जाओगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यू माइट एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, देयर आर 5 एलिमेंट्स जिन पर हिडन ट्रायल लगाना है। सो ये हिडन ट्रायल डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल हियर इज इट्स अ रोबस्ट मेथड। ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट फॉर श्योर आपको एक करेक्ट आंसर देगा इन केस एवर यू आर स्टक विद सच बैलेंसिंग क्वेश्चन। ठीक है, इन केस एवर, टिपिकली तो ऐसा नहीं होगा, बट अगर कभी स्टक हो जाओ तो क्या करना, यहाँ पे नोटिस करना किस तरीके से हम लोग करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर वेरिएबल्स ले लूंगा एज कोएफिशिएंट। ठीक है, I will take variables as the coefficient and those variables are say A, B, C, D, E and F. ठीक है, ये मैंने variables ले लिया। अब नोटिस करना, मैं इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा बाय टेकिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस कर रहा हूँ तो कैसा रहेगा? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर A प्लस C हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड राइट हैंड साइड पर 2F। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। इफ आई बैलेंस आयोडीन एटम्स, ठीक है, तो कैसा रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर A है प्लस 2B है एंड राइट हैंड साइड पर यू हैव E।
तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. देन आई विल बैलेंस से Fe, नहीं Fe के पहले तो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन कर लेते हैं. सो आई विल बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है 3A एंड राइट हैंड साइड पर है इट्स जस्ट F. तो दैट्स थर्ड इक्वेशन. ठीक है. देन आई विल बैलेंस आयरन के एटम्स. आयरन के एटम्स क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर B एंड राइट हैंड साइड पर D. ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको. एंड लास्टली मेरे पास बचता है बैलेंसिंग ऑफ क्लोरीन एटम्स. तो क्लोरीन एलिमेंट बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर C है और राइट हैंड साइड पर 3D प्लस E है. ठीक है, इस तरीके से रहेगा. ठीक है. सो एज यू कैन सी वी हैव गॉट 6 वेरिएबल्स and 5 equation. So what do? We solve other variables in terms of one of them. ठीक है, तो in terms of say A हम लोग solve कर लेते हैं बाकी variables. तो अब वो solve करने का part कैसे होगा, वो आप मेहनत करोगे. जैसे F तो clearly दिख रहा है 3A है. ठीक है, F तो clearly दिख गया 3A है. बाकियों के लिए आपको ना थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. बट जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, ठीक है, वो मैं कर नहीं रहा हूँ अभी यहाँ पर स्टेप्स, बट जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो आपको कैसा दिखेगा. B will come out to be 4/5A, C will come out to be equal to 5A, then D will also come out to be 4/5A and E will come out to be 13/5A. ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ of solving those equations. I am just giving you the solved part directly. ठीक है, ये आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, now once you do that, अब आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा. यहाँ पर ऑब्जर्व करना, A टाइम्स HiO3, अब B की जगह मैं लिख दूंगा 4/5A. ठीक है, FeI2, फिर C की जगह मैं लिख दूंगा 5A HCl, D की जगह लिखूंगा 4/5A into FeCl3 and then E की जगह 13/5A ICl plus F की जगह 3A H2O. ठीक है, now A is something that can be cancelled and I can also bring this in whole number. मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा 5HiO3 plus 4FeI2 plus 25 HCl is giving 4 FeCl3 plus 13 ICl plus 3 H2O. ठीक है, this is something that will be the correct answer. ठीक है, so this is something which I wanted to talk about as a robust methodology towards problem solving. ठीक है, of this variables, not variables actually, जब वेरिएबल लेकर हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो फिर आप इस तरीके से इस मेथोडोलॉजी पर रिलाय कर सकते हो. ठीक है, अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ सॉरी, माय बैड, 3 नहीं होगा, 15 H2O. करेक्ट, ऑल राइट. ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आ गया है किस तरीके से वर्क करना है. दिस इज समथिंग एडिक्वेटली क्लियर विद एवरीवन. ऑल राइट, सो अब अगर आपको, हाँ मतलब ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाया बीच में. ठीक है, अगर आपका आंसर सही आया हो तो एक साथ काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे, सारे रिस्पॉन्स आ गए थे. या इट विल ऑलवेज वर्क, ऑलवेज विदाउट फेल. This is conservation of atoms. In chemical reactions, atoms are always conserved. Okay. Now let's come to the part of analysis of reactions. ठीक है, आपको balanced equation समझ में आ गया है तो हम लोग अब analysis of chemical reactions की तरफ move करते हैं. Now before going into the details of this, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना.
एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब आप बुकलेट देखोगे या फिर आप कोई बुक ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, मेनी बुक्स एक्चुअली दे काइंड ऑफ टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक मास मोल एनालिसिस, ठीक है, मास एनालिसिस, ठीक है, मास वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, और भी भर भर के कुछ ना कुछ दिए होंगे. This is something that is not required. It just kind of just makes more pages in the book. It just makes up for more extra effort of no use. ठीक है. हाँ यार ठीक है, तुम मेरी स्पेलिंग पॉइंट आउट मत करते रहो, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होंगी. अभी ठीक है. कौन था ये टॉपर हमारा? आदित्य. ठीक है आदित्य, तुम मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो. I will have my vengeance. No, I'm just kidding. It's absolutely okay. My English is not that great, especially the spelling part. वो मैं गलती करता रहूँगा. I hope if some technology comes also wherein when I'm writing here, it gives an autocorrect for the typed. It can like optically read the characters that I've written. All right. Yeah, I can type there, but typing is more effort. I would like to have a free flow hand. All right, so you have mass mole analysis. ठीक है. Now with this mass mole analysis, sorry, ये different types of analysis. Coming back, तुम यार मेरे को एक तो बीच में इंटरप्ट कर देते हो important चीज के. ऐसे बीच में ना कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा मैं तो तुम्हारा नुकसान होगा. So as I was saying कि जब हम लोग एनालिसिस करेंगे केमिकल रिएक्शंस का, तो उसमें you know you don't need to work with all these kind of things. मतलब all you need to do is mole analysis. That is something which I will advise you. Okay, let me write this in form of a statement here as well. While analyzing chemical reactions, data can be given or it can be asked in terms of mass, moles, volume, etc. मतलब different types में पूछा जा सकता है. ठीक है. Now what is advised to you, ये ध्यान से observe करना. It is advised that you only focus on mole analysis. ठीक है. मोल एनालिसिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. ठीक है. मैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, आप मोल एनालिसिस करो एंड देन ये एनालिसिस करने के बाद एंड देन डू नेसेसरी इंटर कन्वर्जन. जो भी लगेंगे वो इंटर कन्वर्जन आप कर लेना अलग से, बट एनालिसिस मोल्स में ही करो. ठीक है. मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. डिटरमाइन द वॉल्यूम in liters of CO2 produced, ठीक है, at NTP. ठीक है, कोल्ड कन्वेंशन है अपना. at NTP when 20 grams of calcium carbonate is heated. ठीक है. वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम पर मोल या 40 AMU. ठीक है. रिएक्शन ये भी मतलब कॉमन ही रिएक्शन है, बट तब भी मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. इससे कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 निकलेगा, CO2 गैस. ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है.
Now, this is something which yeah, most of the students, yeah, some of the students are giving me the right answer. किस किस का आया? ठीक है, आयान का सही है। नहीं, अथर्व आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। आदित्य, ऋषि, वैभव सही आ रहा है। आरोही का भी सही है, विनय का भी सही है। आरव थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अमेया का सही है। हर्ष ने, अरे 22.7 मत लो यार, आप 22.4 लीटर वाले ही ले लो जो कन्वेंशन है, ठीक है। राइट, वेदांत का भी सही आंसर आया है। सानिध्य, क्या करा तुमने सानिध्य? तुमने मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, तुमने गूगल तो नहीं करा था पिछला वाला क्वेश्चन? अभी इस वाले का आंसर गलत दे रहे हो इतने सिंपल क्वेश्चन का। ये सानिध्य पे डाउट हो रहा है मुझे। हाँ, ये देखो गूगल करके आंसर दे रहा है। कर लो भाई, तुम्हें बाद में एग्जाम टाइम पे गूगल नहीं मिलेगा। ऑल राइट, सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना। आपको ये 20 ग्राम्स दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, सबका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 1 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 20 ग्राम्स दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कितना इसका वॉल्यूम बनेगा इन एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। अब देयर इज नो मास मास एनालिसिस, ऑल यू हैव टू डू इज मोल एनालिसिस ओनली, ठीक है। मोल एनालिसिस ही करना है आपको, ठीक है। मोल एनालिसिस कैसे करना है? आप जब कोएफिशिएंट से रीड करोगे तो आपको कोएफिशिएंट से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट देखना है, इनके कोएफिशिएंट कैसे हैं, 1 1 और 1। तो क्या समझ में आ रहा है? 1 मोल ऑफ CO2 से 1 मोल CO2, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 ग्राम्स है, 20 ग्राम्स मतलब 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 मोल से कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा वो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से। तो आपका आंसर आ जाएगा दैट moles of CO2 is equal to 1/5. So once you get the mole, so volume आ जाएगा, volume of CO2 at NTP will be 1/5 into 22.4 liters, which when you solve you'll get the answer as 4.48 liters, ठीक है। ये समझ में आया? मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसमें थोड़ा सा कैच है, ठीक है। देखना अगर आप केयरलेस मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो तो। डिटरमाइन द मास ऑफ 90% प्योर MnO2 sample that is required to produce 11.2 liters of Cl2 gas, chlorine gas at NTP, ठीक है, as per the following reaction, ठीक है। रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूं, MnO2 plus 4HCl is going to give you MnCl2 plus chlorine gas plus 2H2, ठीक है। एंड इसमें atomic mass of Mn is 55, ठीक है।
ये ट्राई करो। ऋषि ने वही केयरलेस मिस्टेक कर दी है जो नहीं करनी थी। राइट, वेदांश का आंसर सही है। वैभव केयरलेस मिस्टेक। अक्षय ये तो इनकम्प्लीट आंसर दे दिया। हर्ष नहीं है। आदित्य डेसिमल प्लेस में गड़बड़ कर गए। अर्नव शाह सही जवाब। हेत नॉट रियली, कुछ गड़बड़ कर दी है। रक्षित ने भी केयरलेस मिस्टेक कर दी है। नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स गलत। 39 जिनका आंसर आ रहा है 39 के आसपास, वो सब सेम केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं। 48.33 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 48.33 इज द करेक्ट आंसर। नोटिस करना कैसे, ठीक है, नोटिस करना केयरलेस मिस्टेक क्या हो रही है। सो रिएक्शन आपके सामने है, सिंपल है। स्टार्टिंग स्टेप तो आपके सामने क्लियर है एकदम। 4HCl, दिस इज गिविंग MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है 11.2 लीटर्स एट NTP। ठीक है, इससे कितना MnO2 लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, कितना MnO2 लगेगा। अब आप मोल एनालिसिस करोगे वापस से। ठीक है, मोल एनालिसिस में क्या बताया है मैंने, आप यहाँ पे रिलेशनशिप देखोगे MnO2 और Cl2 के बीच में, तो वापस से इनके कोफिशिएंट दिख रहे हैं यहाँ पर 1 और 1 है। राइट, दोनों के कोफिशिएंट 1 ही है। तो एक मोल बनाने के लिए 1 मोल MnO2 कंज्यूम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इसकी वॉल्यूम, तो 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो ये हाफ मोल है। राइट, तो ये हाफ मोल के लिए कितना MnO2 लगेगा। तो वापस आई कैन गेट दैट मोल्स ऑफ MnO2 required is equal to half. Now this implies mass of MnO2 required कितना हो जाएगा, 1/2 into molecular weight। molecular weight कितना है इसका, 55 plus 32 that is 87। तो ये आ जाएगा 43.5 ग्राम्स। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट द आंसर। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मास ऑफ MnO2 क्या है। आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को, आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ MnO2 सैंपल, जिसकी प्योरिटी आपको दे दी है। ठीक है, तो आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है मास ऑफ MnO2 सैंपल कितना होगा। अब अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला याद है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता था, मास ऑफ द सब्सटेंस जो हमें, जिसकी प्योरिटी के बारे में बात करा जा रहा है, अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100%। तो ये 90% दिया हुआ है आपको। ये आपने अभी निकाल लिया, मास ऑफ MnO2 43.5 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो अब मास ऑफ सैंपल आप निकाल लो, तो इससे आपका आंसर आएगा 48.33 ग्राम्स। ठीक है, जिन्होंने 43.5 का 90% निकाल लिया, उन्होंने केयरलेस मिस्टेक करी है। ये समझ में आया। ऑल राइट, नाउ
लेट मी जस्ट जूम आउट, एक बार आप देख लो, समझ लो कैसा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोल एनालिसिस करके पहले MnO2 का निकाला कितना रिक्वायरमेंट है, एंड फिर MnO2 प्योर MnO2 का मास आया तो उससे हमने फिर सैंपल का मास निकाला। ठीक है, सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर हाउ टू डू मोल एनालिसिस। ऑल राइट, और क्वेश्चंस करते हैं, बट उसके पहले मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ में बिफोर आई प्रोसीड विद क्वेश्चंस। सो वापस से स्टार मार्क करके लिखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। फॉर गैशियस स्पीशीज, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, गैशियस स्पीशीज के लिए है। फॉर गैशियस स्पीशीज involved in a reaction, we can also perform volume analysis. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मोल एनालिसिस वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट है, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर constant. Now, based on this, अब आप ऑब्जर्व करना व्हाट आई मीन टू से एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3। ठीक है, ऑब्जर्व करना, आई कैन रीड दिस एज 1 mole of N2 combines with 3 mole of H2 to give 2 moles of NH3। ठीक है, मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूं। अब यहां पर नोटिस करना, गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू NRT रहता है। ठीक है, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर ये फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट बोल दिया, तो आई कैन वेरी वेल से दैट I can very well say that volume is directly proportional to moles. ये समझ में आया? So this means जो रेशियो मोल्स का है, ठीक है, वही रेशियो, अभी वही में बड़ा ही तो आएगा, वही रेशियो वॉल्यूम का भी होगा। ठीक है, मुझे बोर्ड्स में हिंदी में ना राइटिंग खराब होने की वजह से 67 नंबर आए थे बस, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है। सो नाउ अगर मैं अब इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 लीटर, ठीक है, लीटर में लिखो या मिलीलीटर में लिखो चलेगा, 1 लीटर ऑफ N2 combines with 3 liters of H2 to give 2 liters of अमोनिया। ये समझ में आया? ये मैंने यहां पर
वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख दिया। जो रेशियो मोल्स का है वही रेशियो वॉल्यूम का भी चलेगा। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, नाउ बेसिस दिस अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करके बताओ। सो C2H4 gas combines with the O2 gas to give you CO2 gas plus 2H2O liquid। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ which of the following statements is or are correct? ठीक है, एक एक करके मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। 1 gram of CH4, not CH4, C2H4 combines with 3 grams of O2 to give, इसको भी 2 कर देते हैं, 2 grams of CO2 and 2 grams of H2O, या फिर 0.1 mole of C2H4 combines with 0.3 mole of O2 to give 0.2 mole of CO2 and 0.2 mole of H2O। ठीक है, या फिर 10 ml of C2H4 combines with 30 ml of O2 to give 20 ml of CO2 and 20 ml of H2O। ठीक है, at say NTP। ठीक है, हाँ मैं जूम आउट कर देता हूं। तो अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बाप रे वैभव, अभी तक तीनों बैच में तुम पहले हो जिसने ए स्टेटमेंट को राइट बोल दिया। नहीं, एक्चुअली तुम्हारा भी भाई है एक शौविक यहाँ पर, उसने भी ए को राइट बोल दिया है। एक और मिला आर्यन, उसने तो एबीसी सर, ऑल ऑफ दीज फ्री में ऑप्शन है, सब ले लो। सौम्य शुक्ला, अरे भाई ए कैसे सही हो सकता है? ए तो इनकरेक्ट है। We don't read in terms of mass. These coefficients are never ever read in terms of mass. ठीक है, I hope that is something which is absolutely clear. You don't read these coefficients in terms of mass. ऐसा नहीं बोलोगे कि 1 ग्राम 3 ग्राम कंबाइन करके 2 ग्राम 2 ग्राम बना देगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सेकेंड वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस दैट आई अग्री। यहाँ पे मोल्स का रेशियो कोफिशिएंट्स के रेशियो में ही है 1322, तो 0.1 0.3 0.2 0.2, ये भी सही है। नाउ द ट्रिक इज थर्ड वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई इज थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट? कैन एनीवन टेल मी? Yes, Arush, I am also asking why, with 3 Y's in the end. Right. Water is in liquid state.
यहाँ पे पढ़ो ना, फटाफट फटाफट आंसर करने के चक्कर में। एनटीपी पर वैसे भी देखो ना, ये वाटर लिक्विड रहेगा, तो ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ गैसेस के लिए है, ठीक है। ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ये सिर्फ गैसेस के लिए है। दिस इज समथिंग दैट मेड इट इनकरेक्ट, ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ठीक है, लेट मी राइट अनदर स्टेटमेंट, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर सिर्फ इतना लिखा होता 10 ml of C2H4 combines with 30 ml of O2 to give 20 ml of CO2 at same T and P condition, तो मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क कर देता, ठीक है। एनटीपी भी जरूरी नहीं है, बस टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। A 10 ml gaseous hydrocarbon is completely burnt to give 30 ml. Let me just close the windows. To give 30 ml of CO2 and 40 ml ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वाटर वेपर है, ठीक है, मैंने बता दिया कि गैस है, ठीक है। एट कांस्टेंट T, P कंडीशन, देन डिटरमाइन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ट्राई करो। ऑल राइट, सो आई एम गेटिंग सम करेक्ट आंसर्स। ऋषि का आंसर सही है, गुड गुड। आदित्य, पलाश, दूसरा आदित्य, अच्छा नहीं सेम ही आदित्य है, तो सही आंसर है। अरे भाई ठीक है आदित्य, तुम्हारा आंसर सही है, तुम 5 बार लिखोगे तो वो आंसर सही नहीं हो जाएगा। आरोही गलत कर दिया, दोबारा चेक करो। अमेया सही है, हेत सही है, शौविक सही है, अन्वेषा सही है, आरव सही है, श्रीतम सही है, स्नेहा पांडे भी सही है, ठीक है। C3H8, that is the correct answer. Good, most of you are able to get it. कैसे करेंगे? Let the हाइड्रोकार्बन बी CXHY, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज आपको यही डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो CXHY। नाउ अब ऑब्जर्व करना, स्टेप 1 जो हमेशा आपके लिए रहेगा, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिख लिया था, ठीक है। CXHY गैशियस प्लस X/4 O2, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, XCO2 गैस प्लस Y/4 H2O, एंड H2O को इस बार यहाँ पे गैस ही बताया जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स ओके। नाउ अब आप एज पार्ट ऑफ स्टेप 2 नोटिस करना मोल एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि गैसेस है तो हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस कैसा है? CXHY इसका कोफिशिएंट 1 है एंड CO2 का कोफिशिएंट x है, यानी कि 1 ml से x ml आएगा,
अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके 10 ml से ये 30 ml आ रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। सिमिलरली अगर आप CXHY और H2O के बीच का रिलेशनशिप देखोगे तो एक ml से इसके y/4 ml आ रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि सर 10 से 40 आ रहा है, तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओगे तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया C3H8। ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और यू कुड ऑल्सो हैव डन वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है, मल्टीपल वेज है टू आंसर द सेम क्वेश्चन, you could have done it in that manner as well। ठीक है, ऑल राइट। थोड़ा सा अब हाँ एक टफ क्वेश्चन देते हैं, स्लाइटली टफ है, देखो सॉल्व होता है तो। A certain gaseous alkane is mixed with just sufficient amount of O2 to undergo complete combustion। ठीक है। If the volume of reaction mixture reduces by 50% upon complete reaction, then determine the alkane। ठीक है, इसमें एक और गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल वॉल्यूम measurement are at room temperature pressure condition। ठीक है, are at room temperature pressure condition। What does this mean? This means that H2O जो combustion पे H2O produced होगा, वो H2O आपको liquid लेना है। ठीक है, and as a result आप यहाँ पर neglect कर सकते हो, neglect liquid volume as compared to वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, बस इतना ही डेटा है और कोई डेटा नहीं है। दैट इज व्हाट मेक्स द क्वेश्चन अ लिटिल डिफिकल्ट। हेत आपका आंसर सही नहीं है। डोंट बी इन अ रश टू आंसर, डबल चेक। जल्दी आंसर देने के ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता है, करेक्ट आंसर देने के मिलता है। नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे इनफैक्ट गलत आंसर के तो। रोहन, अमेया, ऋग्वेद, आयुष, सबका आंसर गलत है। CH2 कौन सा अल्केन होता है आयुष? CH2 कोई अल्केन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गलत आंसर है सबका। वेदांश, आर्य, हर्ष शाह एंड हर्ष सिंह दोनों ने साइमल्टेनियसली सेम जवाब दिया, बट दोनों का गलत है।
हाँ, ऋषि ने सही आंसर दिया। कृष्णा सही नहीं है, आरोही भी सही नहीं है, वेदांश का भी सही नहीं है। Aditya, Rakshit, no. All right, so let me tell the correct answer. The correct answer is again C3H8 only. ठीक है, C3H8 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। नोटिस करना आप किस तरीके से। ठीक है, तो लेट मी राइट द सोल्यूशन। अब ऑब्जर्व करना इस सोल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर यू टू लर्न। लेट द alkane be CnH2n+2। ठीक है, अगर ये नॉलेज नहीं है आपको कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। मतलब दिस इज समथिंग which will become a little bit tricky for you. Now observe करना, what was the step 1 that we write? We write the equation. So CnH2n+2 plus O2 is going to give CO2 plus H2O। ठीक है, गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, बट ये लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, दैट ये लिक्विड रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। जिसने पहले नहीं देखा तो दोबारा देख लो। यहाँ पर n कार्बन है तो यहाँ पर भी n कार्बन कर दिए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2n+2। तो यहाँ पर मैं n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 2n+2 हाइड्रोजन आ गया ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितने हैं, 2n एंड n+1, तो कितना हो गया, 3n+1 ऑक्सीजन हो गया राइट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी उतने होने चाहिए, इसलिए मैंने 3n+1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया है। All right, so this is the balanced equation. Now step 2 आपके लिए रहेगा, आप एनालिसिस करो। Either you do mole mole और वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक important पार्ट है which becomes a very very important lesson for all the guys here. Do not hesitate to take variable। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में कोई तो पूछ रहा था कि सर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैसे फिर हम करेंगे कैलकुलेशन। भाई आप स्टार्ट तो करो। अगर आपको वेरिएबल लेना पड़े तो आप वेरिएबल लेके स्टार्ट करो। हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, हो सकता है सॉल्व होके आ जाए, यू डोंट नो। सी प्लीज अंडरस्टैंड राइट नाउ। अब जब आप जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, you are going to come across questions जहां पर you might not be able to say that step 1 step 2 step 3 और ये आंसर आ जाएगा। मतलब आप हवा में नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको पेन चलाना पड़ेगा। आप जैसे तैसे स्टेप 1 लिखोगे, फिर से क्वेश्चन रीड करोगे, एनालिसिस करोगे क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, तो फिर आपको शायद स्टेप 2 स्ट्राइक करे। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज a very very important learning जो आपको अगेन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ये काम आएगा। आपको पेन चलाना पड़ेगा तभी जाके आपको स्ट्राइक होगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो अगर आप स्टेप 1 लिखोगे, डू नॉट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल, टेक दैट वेरिएबल, एंड वेरिएबल लेने के बाद में आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैंने यहां पर लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ
CnH2n+2 alkane इक्वल टू VMl। ठीक है, मैं यहाँ पर 100 ml भी ले सकता था। 100 ml क्यों ले सकता था? क्योंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज मेंशन किए हुए हैं। तो मैं अगर 100 भी ले लेता तो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। बट आई एम मोर फॉन्ड ऑफ वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल भी लेके बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट दिस बी वॉल्यूम ऑफ CnH2n+2 इज इक्वल टू VMl, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व करना, हम लोग एनालिसिस करेंगे अपना CnH2n+2 और O2 के बीच में। आप देखोगे तो CnH2n+2 का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, एंड O2 का है 3n+1/2, ठीक है। तो अगर मैं इसके VMl कंज्यूम करना चाह रहा हूं तो कितना ऑक्सीजन मुझे लगेगा, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। दैट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड विल बी 3n+1/2 into VMl, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, ओके। अब इस तरीके से मैं CO2 का भी एनालिसिस कर सकता हूं। CnH2n+2 एंड CO2 के बारे में सोचो, ठीक है। CO2 के बारे में कैसा है, अरे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट n है, तो अगर ये VMl है तो इसका कितना लगेगा? अगेन आई कैन do a cross multiply and I can say that the volume of CO2 produced is equal to n times VMl, ठीक है। Now H2O के लिए I will not bother, ठीक है। H2O जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2O produced can be neglected as compared to volume of gases, ठीक है। Now this is something some of you may have like why ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर दें, प्रूव करो मैथमेटिकली। तो ठीक है, हम लोग एक क्विक डेटा के साथ में भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है। से ये रैंडम डेटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडम डेटा टू जस्ट प्रूव दिस पॉइंट दैट लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ H2O विच इज एक्चुअली लिक्विड इज नेग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना कि CH4, ठीक है, मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, CH4 gas plus O2 gas is giving CO2 gas plus 2H2O liquid, ठीक है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब मान लो STP कंडीशंस है, STP कंडीशंस पर ये तो गैस रहेगा और ये लिक्विड है, तो ये गैस का 1 मोल मतलब 22.4 लीटर्स, ठीक है। और इसके लिए अब क्या है, यू कांट अप्लाई दैट फॉर्मूला बिकॉज ये तो लिक्विड है, तो इसमें आप क्या करोगे, 2 × 18 ग्राम्स इंटू 1 ग्राम पर ml, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी होगी, समझ में आया। 2 × 18 ये मास आ जाएगा, ठीक है, इंटू और नॉट इंटू, एक्चुअली मुझे डिवाइड करना चाहिए था, डिवाइड बाय द डेंसिटी विच इज 1 ग्राम पर ml, तो ये कितना आ रहा है 36 ml। तो कैन यू सी इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, this is negligible, so that is why the statement here is that the volume of liquid can be neglected, okay। So coming back to the analysis, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, CnH2n+2 plus 3n+1/2 O2 gas is giving NCO2 gas plus n+1 H2O लिक्विड। इसको बस मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना, स्टार्ट इसका VMl है और इसका 3n+1/2 VMl लगेगा, CO2 और H2O तो है नहीं, एंड में क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, CO2 NVMl
वेल प्रोड्यूस हो रहा है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, एंड ये तो लिक्विड है तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हो उसका. सो एज यू कैन सी दिस इज द वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन and this is the volume after reaction, right? and आपको बोला गया है कि 50% रिडक्शन हो गया है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन का 50% इज व्हाट इज वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन. सो इस पे आप इक्वेशन बन जाएगी V प्लस 3n plus 1/2 into V into 50/100 इज इक्वल टू NV. ठीक है, ये V कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन होकर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर दैट द alkane is C3H8. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आई होप आपको अभी समझ में आया है. ठीक है, डेटा बहुत कम दिया था इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था. ठीक है, अदरवाइज मेथोडोलॉजी वही है, यू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड देन यू डू द एनालिसिस. ठीक है, हाँ डेफिनेटली ऋषि, डेफिनेटली देयर आर फास्टर मेथड्स बट आई वांट टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ. ठीक है, आई वांट टू बिल्ड एन अप्रोच फॉर यू गाइज व्हिच वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, right? So this is something where you will have to take some time but develop this approach. All right, so I think आज के लिए इतना काफी है. We are good to close this lecture for the day and आपका जो बचा हुआ पिछला होमवर्क था उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आई विल डेफिनेटली शेयर असाइनमेंट के साथ में, एंड नेक्स्ट होमवर्क क्या करना है वो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सबके साथ. ठीक है, so let's close the session for the today. Thank you guys. All right.